Assalamu alaikum, dear students. Hope you are doing fine. I am your teacher Javed Saab before you. Dear students, we are going through the lesson in Achilles of class 8th English textbook. We have read the first three parts of this lesson. You can watch them in the first three videos. Today we are going to start it at page number 85. It's the lesson here today. Let's start it. Slowly the tortoises unpacked their heads and legs from their gleaming shells and set off down the road. The narrator tells us that the tortoises, जो कछुए थे, unpacked their heads, उन्होंने खोले अपने जो सिर है and legs, और जो उनकी टांगे हैं from their gleaming shells. वो जो है gleaming means having a bright sheen. जो चमकीले होते हैं उनके वो शेल्स उनसे वो निकल गए एंड सेट ऑफ डाउन द रोड सेट ऑफ इज़ अ फ्रेज हियर इट मीन्स टू बिगिन ए जर्नी एंड दे सेट ऑफ डाउन द रोड उन्होंने अपना सफ़र जो है यानी चलना शुरू किया रोड पे विदाउट एंथुसिज्म लेकिन उनमें कोई जो जोश खरोश नहीं था. They were lacking excitement and eagerness. I watched them. The narrator tells that I watched them while they were walking down the road. Fascinated, and I was fascinated. मैं हैरान हो गया. The one that particularly took my fancy, और उनमें एक ऐसा था that took my fancy जो मुझे पसंद आया was with a shell the size of a teacup. और जो उसका shell था its shell was the size of a teacup. ये चाय के एक जो प्याला होता है उसके बराबर उसका shell था उसके साइज़ के बराबर. It seemed sprightlier. It seemed that tortoise, the one that caught the eyes of the narrator, it seemed sprightlier. वो जो है it was full of life. यानी वो जिंदा दिल था ज़्यादा एक्टिव था दैन द अदर्स बाकी टोर्टाइज से बाकी कछुओं से. Its eyes were bright, and its eyes, the eyes of that tortoise, which caught the attention of the narrator. Its eyes were bright. उसकी जो आँखें थी वो चमकीली थी. And its walk was alert. और ये होशियारी से चलता था. I sat looking at it. मैं वहाँ बैठा and looking at it मैं उसकी तरफ देख रहा था for a long time. बहुत वक्त तक. I convinced myself. मैंने खुद को राज़ी किया. मैंने खुद को यकीन दिलाया. Convince means make agree or assure myself that the family would greet its arrival at the villa. कि अगर मैं इसको अपने जो बंगला है विला मीन्स है बंगला अगर मैं इसको बंगले पे ले जाऊंगा जो मेरी फैमिली है माई फैमिली वुड ग्रीट इट वो उसको वहाँ वेलकम करेगी विद एंथुसिज्म जोश खरोश के साथ वो इसका इस्तकबाल करेंगी. यानी ये कि दे विल आल्सो लाइक दैट tortoise. The fact there was a fact that I had no money with me did not worry me, but this thing did not worry me. The fact that I had no money did not worry me. मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन इस चीज़ ने मुझे परेशान नहीं किया. I would simply tell the man. I would tell the rose beetle man. The narrator tells that he would tell the rose beetle man. वो खुद से सोच रहा था कि जो है मैं इस आदमी को बोलूँगा रोज बिटल मैन को बोलूँगा टू कॉल एट द विला फॉर पेमेंट. वो मेरे साथ आएगा वहाँ मेरे बंगले में और वहाँ से पैसे लेगा. इट नेवर हैपन्ड टू मी दैट ही माइट नॉट ट्रस्ट मी. मीनिंग दैट एवरी टाइम ही ट्रस्टेड मी. वो मुझे जो है हर वक्त में मुझ पे यकीन करता था. द फैक्ट एंड देयर वाज वन मोर फैक्ट देयर और एक और बात थी वहाँ दैट आई वाज इंग्लिश was the fact that I was English was sufficient. ये जो है the fact that I was English was sufficient for the islanders had a love and respect for the Englishman. जो है ये fact था कि I was English. I belonged to England. English means someone who belonged to England. English is a subject, but when we say English, I was English, he is an English, meaning that he belongs to England. He lives in England. ये जो है इंग्लैंड से था. was sufficient ये काफ़ी था for the islanders जो वहाँ के इस जजीरे पे लोग रहते थे. had a love वो मोहब्बत करते थे and respect for the Englishman जो इंग्लिश अंग्रेज़ थे वो जो है उनकी इज़्ज़त करते थे ये लोग जो इस जजीरे पे रहते थे.
I asked, the narrator again tells that in the second para, the narrator tells that I asked the rose beetle man the price of the little tortoise. मैंने उससे इसकी कीमत पूछी. मैंने रोज बीटल मैन से द प्राइस ऑफ द लिटिल टर्टाइज इस कछुए की कीमत पूछी. एंड यू शुड रिमेंबर वन थिंग दैट द रोज बीटल मैन वाज नॉट एबल टू स्पीक. वो बात ही नहीं करता था, वो इशारों से समझाता था. ये हमने पिछले लेसन में देखा है. ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स. ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स. उसने अपने दोनों हाथ जो है खड़े किए. फिंगर्स स्प्रेड आउट. और जो अपनी उंगलियां हैं वो खोल ली. यानी उसने हाथ के इशारे से कहा कि आप दोनों हाथों से समझाया मुझे क्या. आई शुक माई हेड फर्मली एंड हेल्ड अप टू फिंगर्स. मैंने अपने सर को हिलाया और दो उंगलियां दिखाई. लिसन हियर. ही हेल्ड अप बोथ हैंड्स. उसने अपने दोनों हाथ खड़े किए. फिंगर्स स्प्रेड आउट. यू नो वी हैव 5 फिंगर्स इन वन हैंड एंड 5 इन द अनदर. तो हम उसने हाथ के इशारे से समझाया 5 और 5 यानी 10. इनकी कीमत जो है वो 10 है, 10 रुपया या $10 वगैरह. आई शुक माई हैड फर्मली. नरेटर टेल्स दैट द नरेटर शुक हिज हेड फर्मली. उसने अपना सर हिलाया. एंड हेल्ड अप 2 फिंगर्स. और अपनी 2 उंगलियां उसने खड़ी की. अनकॉन्शियसली इमिटेटिंग हिम. अनकॉन्शियसली जो है उसने इमिटेट किया, उसने नकल की रोज बिटल मैन की. रोज बिटल मैन वाज नॉट एबल टू स्पीक. he was able to communicate his feelings or express himself through gestures. वो जो है इशारों से समझाता था बात. और इधर जो नैरेटर है उसने भी इशारे से ही समझाया था उसको. ही क्लोज्ड हिज आइज. जो रोज बीटल मैन है उसने अपनी आंखें बंद की. इन ऑरर. ऑरर होता है डिस्ट्रेसिंग इमोशन, जो है जो आप बात जो आप पसंद नहीं करते हो. यानी उसको ये बात पसंद नहीं आई. 2 रुपया वाली कीमत उसको पसंद नहीं आई. एंड हेल्ड अप 9 फिंगर्स. और उसने जो है इस टाइम 5 और 4 यानी 9 जो उसकी फिंगर्स थी वो खड़ी की. यानी इसकी कीमत 9 रुपया या $9 बता दी. आई हेल्ड अप 3. मैंने 3 खड़ी किया. अब जो वो 9 पे आ गया और मैं 3 पे आ गया. द रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल. द रोज बीटल मैन लुक्ड सॉरोफुल. वो जो है वो आजरदा दिखाई दे रहा था, वो तो परेशान हो गया था. एंड साइड. और उसने जो एक आहबर ली. साई मीन्स आहबरला, होश त्राउन. सो वी सैट इन साइलेंस. वी सैट, वी हेयर मीन्स द रोज बीटल मैन एंड द नरेटर, दे सैट इन साइलेंस. वो जो दोनों जो है वो अब छुपके से बैठे थे वहाँ. एंड सिटियोड एट द टर्टाइज. वो दोनों जो है टर्टाइज की तरफ देख रहे थे. क्रॉलिंग अनसर्टनली अबाउट द रोड. जो है वहाँ रोड से जा रहा था गैर यकीनी तौर पर. अनसर्टनली मीन्स गैर यकीनी तौर यानी थोड़े थोड़े वो जो कदम हिला रहा था वहाँ पे रोड पे. देन द रोज बीटल मैन पिकड अप द रेप्टाइल. देन उसके बाद द रोज बीटल मैन, द मैन विच वाज सेलिंग द रोज बीटल्स, you know, he was setting pets besides those tortoises. He had those rose beetles also, those insects also. Picked up that reptile. He picked up the reptile. Reptile means वो तो आपको पता है. reptile means cool, ये cool blooded vertebrates होती है जिनका एक vertebral column होता है. ये क्लास रेप्टिलिया से होते हैं. और जो आम सी ज़बान है उसमें हम कहते हैं जो क्रीपर्स होते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, जो रेंगते हुए चलते हैं, पेट के बल चलते हैं, उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. इसमें स्नेक भी आता है और इसमें टर्टाइजेस भी आते हैं जो रेंगते हुए चलते हैं, रेप्टाइल. एंड शोड मी इन पेंटोमाइम. और उसने जो है इशारों से मुझे समझाया. हाउ लवली इट शेल वाज. देखो इसकी जो शेल है इतनी कितनी खूबसूरत है. ही हैंडेड मी द टर्टाइज. उसने मुझे ये कछुआ थमा दिया. He handed me the tortoise. The rose beetle man handed narrator the tortoise and held up 5 fingers. He held up 5 fingers. That means he showed that its price is $5 or 5 rupees now. Okay. Hope you are you have read the lesson and you have understood it well. Okay. Khuda Hafiz. Assalamu alaikum.